নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ অন্য এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো। কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশীক অপমান কৰা বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত ক্ষমা খুজিছে। কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশীক বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা বিচাৰিছে। এতিয়া বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা বিজেপিৰ সেই মন্ত্ৰীৰ এইবাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা সোফিয়া কুৰেশীলৈ। সকলো সীমা চেৰাই গৈ উদ্ভট মন্তব্য কৰিছিলে দেশৰ গৌৰৱ কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া ক্ষমা প্ৰাৰ্থী এগৰাকী বিজেপিৰ নেতৃত্ব দেশৰ গৌৰৱ সোফিয়া কুৰেশী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভগ্নী বুলি কৈছিলে বিজেপি মন্ত্ৰী বিজয় শাহে। এই মুহূৰ্তৰ কিছু বিশদ তথ্য আমাৰ হাতত আছে, সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাই যাম। আমি ইতিমধ্যে জনাইছো কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশীক অপমান কৰা বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত ক্ষমা খুজিছে। এই মুহূৰ্তত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ এইবাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। সোফিয়াক অপমান কৰাক লৈ বিজেপি মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। সকলো সীমা চেৰাই গৈ উদ্ভট মন্তব্য কৰিছিলে দেশৰ গৌৰৱ সোফিয়া কুৰেশীৰ বিৰুদ্ধে আৰু দেশৰ গৌৰৱ সোফিয়া কুৰেশী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভগ্নী বুলি কৈছিলে বিজয় শাহে। সোফিয়াক অপমান কৰাক লৈ বিজেপি মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল আৰু সম্প্ৰদায়ৰ আবেগক আঘাত কৰা মন্তব্যৰ বাবে মই অন্তৰৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছো বুলি কোৱা হৈছে। এইবাৰ মই মোৰ বক্তব্যৰ বাবে লাজ আৰু দুখী অনুভৱ কৰিছো বুলিও কোৱা হৈছে। কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশী আমাৰ দেশৰ ভগ্নী, দেশৰ গৌৰৱ। বিজেপি মন্ত্ৰীৰ উদ্ভট মন্তব্যক লৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্ততে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। তাৎক্ষণিকভাৱে বিজেপি মন্ত্ৰীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো সোফিয়া কুৰেশীক প্ৰথমতে অপমান আৰু সোফিয়া কুৰেশীয়ে দেশ জাতি আৰু সমাজৰ বাবে যি কাম কৰিছে সকলোৱে আচলতে প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে তেওঁক। আৰু ভাষণটোত মোৰ ইচ্ছা উদ্দেশ্য আছিলে সোফিয়াৰ বিষয়ে সঠিকভাৱে সমাজত প্ৰকাশ কৰা বুলিও ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰে। দেশৰ গৌৰৱ কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশীক সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভগ্নী আখ্যা দিছিলে মন্ত্ৰী বিজয় শাহে আৰু তাৰ পাছতে ভয়াৱহ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। যিসকলে আমাৰ ভগ্নীসকলৰ সেন্দুৰ মচিছে তেওঁলোকৰ ভগ্নীৰ দ্বাৰা আমি প্ৰতিশোধ ললো বুলি কোৱা হৈছিল আৰু ভাৰত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ বুলি পাকিস্তানক বাৰ্তা দিছে সোফিয়া কুৰেশীয়ে। কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশীক অপমান কৰা বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত ক্ষমা খুজিছে। আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছো পেহেলগামত সংঘটিত হোৱা 22 এপ্ৰিলৰ সেই অভিশপ্ত দিনটোৰ কিছু নাৰকীয় ঘটনা আৰু তাৰ পাছতে সোফিয়া কুৰেশীয়ে দেশৰ বাবে কৰা বিভিন্ন কাম যাৰ ফলত আচলতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে উচ্চ প্ৰশংসাৰে তেওঁক উপচাইছিলে, সকলোৰে তেওঁ মৰম বুটলিছিলে। দেশৰ গৌৰৱ সোফিয়া কুৰেশী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভগ্নী বুলি বিজেপি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ বিজয় শাহে কোৱাৰ পাছতে যি পৰিস্থিতিৰ আচলতে উদ্ভৱ হ'ল সোফিয়াক অপমান কৰাক লৈ বিজেপি মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পাছতে উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল। সম্প্ৰদায়ৰ আবেগক আঘাত কৰা মন্তব্যৰ বাবে মই অন্তৰৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছো বুলি এইবাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে। মই মোৰ বক্তব্যৰ বাবে লাজ আৰু দুখী অনুভৱ কৰিছো বুলিও কৈছে বিজয় শাহে। কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশী আমাৰ দেশৰ ভগ্নী, দেশৰ গৌৰৱ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। হঠাৎ সুৰ সলনি হৈছে বিজেপি মন্ত্ৰীৰ উদ্ভট মন্তব্যক লৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্ততে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল আৰু তাৰ পাছত এইবাৰ অন্য এক ৰূপ তাৎক্ষণিকভাৱে বিজেপি মন্ত্ৰীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিলে। সোফিয়াক অপমান কৰাক লৈ বিজেপি মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে চাৰিওফালে প্ৰতিবাদ আৰু সোফিয়া কুৰেশীয়ে দেশ জাতি আৰু সমাজৰ বাবে যি কাম কৰিছে জাতি মাটি ভেটি যি সময়ত সংকটত তেতিয়া একমাত্ৰ সোফিয়া কুৰেশীয়ে বাৰম্বাৰ ভাৰতৰ হৈ মাত মাতিছিল। ভাষণটোত মোৰ ইচ্ছা উদ্দেশ্য আছিলে সোফিয়াৰ বিষয়ে সঠিকভাৱে সমাজৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰা। দেশৰ গৌৰৱ কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভগ্নী আখ্যা দিয়া মন্ত্ৰী বিজয় শাহৰ বিৰুদ্ধে চাৰিওফালে প্ৰতিবাদ। যিসকলে আমাৰ ভগ্নীসকলৰ সেন্দুৰ মচিছে তেওঁলোকৰ ভগ্নীৰ দ্বাৰা আমি প্ৰতিশোধ ললো বুলি তেওঁ কৈছিলে। আৰু অৱশেষত এতিয়া সোফিয়া কুৰেশীক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিজয় শাহৰ। ভাৰত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ বুলি পাকিস্তানলৈ বাৰ্তা দিয়া সোফিয়া কুৰেশীক অপমান কৰা এই বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিজয় শাহ অৱশেষত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ এইবাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। কিছু মন্তব্য আমি এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছো, আগবঢ়াইছো। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर
उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। আৰু এয়া আমি ইতিমধ্যে মন্তব্য শুনাইছো। এয়া হৈছে বিজয় শাহৰ মন্তব্য। সকলো সীমা চেৰাই উদ্ভট মন্তব্য কৰা সোফিয়া কুৰেশীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যি মন্তব্য কৰিছিলে তাৰ পাছতে চাৰিওফালে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো পেহেলগামৰ সেই নাৰকীয় ঘটনাৰ পাছত বাৰম্বাৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে থিয় হোৱা সোফিয়া কুৰেশীক কৰা সেই অপমান কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহয়। আৰু বাৰম্বাৰ তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে তেওঁ এগৰাকী মুছলমান, কিন্তু তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী নহয়। সম্প্ৰদায়ৰ আবেগক আঘাত কৰাৰ মন্তব্যৰ বাবে তেওঁ এতিয়া দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বক্তব্যৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট লাজ আৰু দুখী অনুভৱ কৰিছে। কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশী আমাৰ দেশৰ ভগ্নী, দেশৰ গৌৰৱ, আৰু যিসকল ভগ্নীৰ আচলতে কপালৰ সেন্দুৰ মচিছে সেই ভগ্নীৰ দ্বাৰা প্ৰতিশোধ লোৱাৰ কথা তেওঁ কৈছিলে, যাৰ ফলত এক প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। সোফিয়া কুৰেশীক অপমান কৰাক লৈ বিজেপি মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে চাৰিওফালে প্ৰতিবাদ, আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। আজি কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ সেই যি উদ্ভট মন্তব্য কৰিছিলে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ হাতত আছে। সেই প্ৰতিক্ৰিয়া এবাৰ আপোনালোকক এবাৰ শুনোৱাই লৈছোঁ। हलवा होना चाहिए। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा
और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में। আৰু সোফিয়া কুৰেশিক অপমান কৰাৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পাছতে যেনেধৰণৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল, আৰু অৱশেষত এইগৰাকী বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিজয় শাহৰ সেই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা, সকলো সীমা চেৰাই উদ্ভট মন্তব্য কৰা দেশৰ আচলতে যিগৰাকী গৌৰৱ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে বাৰম্বাৰ মাত মাতি অহা সোফিয়া কুৰেশিক অপমান কৰিছিল, আৰু অৱশেষত তেওঁ এতিয়া এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে যেনেধৰণে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিলে সোফিয়া কুৰেশিৰ বিৰুদ্ধে, তাৰ পাছতে তেওঁ এতিয়া দুখ অনুভৱ কৰিছিলে, যথেষ্ট লাজ পোৱা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিলে। সম্প্ৰদায়ৰ আৱেগক তেওঁ আঘাত কৰাৰ যি আচলতে চেষ্টা এটা কৰিলে, সেই চেষ্টাৰ বাবে তেওঁ বাৰম্বাৰ এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ লাজ আৰু দুখী অনুভৱ কৰিছে। তেওঁ কি কৈছে পুনৰ সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से
कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं।